Hello students, welcome to IE. Today in this video we have came up with another one example with a MOS capacitor. So let's see what is the question. The figure 1 and figure 2 shows two MOS capacitors of unit area. So you can see two figures are there, figure 1 and figure 2. Both of them are MOS capacitors. So this is MOS capacitor 1, this is MOS capacitor 2. Now the capacitor in the figure 1, ये जो figure 1 का capacitor है, has insulator material X of epsilon 1 equals to 4 and the thickness is 1 nanometer. And Y of epsilon 2 20 and the thickness is 3 nanometer. मतलब क्या है कि the MOS capacitor that is represented by this figure 1, it has two insulators. ये दोनों मेरा insulators है, epsilon 1 और epsilon 2 का. अब epsilon 1 is nothing but the X insulator. So this is the X insulator and Y मतलब epsilon 2. So this is the Y insulator. तो X insulator के permittivity क्या है? 4 है. So it has a permittivity of 4. Similarly, epsilon 2 has a permittivity of 20. You can see. Now another thing is also given, the thickness. So thickness मतलब ये जो पहला layer है इसका thickness, then इसका thickness. So what is the thickness of the first layer? That is the 1 nanometer. That means this one is 1 nanometer. Second, that is the thickness of the Y layer is 3 nanometer. So that means this one is 3 nanometer. ये given है. Another, the capacitor in the figure 2. अब figure 2 के बारे में बोल रहा है. So figure 2 has only one insulator. यहाँ पे दो insulator था, उसमें one insulator है और thickness क्या है? T equivalent. तो इसमें जो insulator है वो X insulator है. बोला गया है कि one insulator material X of thickness T equivalent. तो X का permittivity क्या था? 4. तो इसका भी permittivity आपका 4 आएंगे और इसका जो T equivalent value है ये मेरा thickness of the insulator material है inside the MOS capacitor 2. अब if the capacitor are of equal capacitance, मतलब figure 1 पे जो capacitor है ये वाला और figure 2 पे जो capacitor है ये दोनों का capacitance value आपके लिए same बोला गया है. Then we need to find the value of this T equivalent. What is the value of the T equivalent in nanometer? मतलब ये T equivalent value क्या होंगे? We have to find that. So you can see this is a basic numerical or you can see this is a numerical on a MOS capacitor जहाँ पे आपको the figure 2 का जो MOS capacitor है उसके अंदर जो insulator है उस insulator का thickness आपको चाहिए. Now let us do the numerical. If you do the numerical, first you take the figure 1. So in this figure 1, you can see that there are two insulators. So let us first solute the figure 1. Figure 1. So figure 1 के लिए मेरा जो कैपेसिटेंस होगा, अब देखो कोई भी MOS कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है टोटल, that total MOS capacitance depends on two things. First one, the oxide capacitance and the second one is the depletion capacitance. That means the C total of any MOS capacitor is due to or is a function of आपका oxide capacitance and the depletion capacitance. Depletion capacitance और oxide capacitance के ऊपर डिपेंड होता है, दोनों के ऊपर. अब देखो ये ऑक्साइड कैपेसिटेंस किस लिए आता है? ऑक्साइड लेयर के लिए आता है. और ये जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस ये कब होता है? जब आप यहाँ पे जो टर्मिनल होंगे, गेट टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपका सबस्ट्रेट, यहाँ पे भी एक टर्मिनल होता है सबस्ट्रेट टर्मिनल और यहाँ पे आपका गेट टर्मिनल. अब गेट और सबस्ट्रेट के बीच में जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी आपका ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस डिप्लीशन कैपेसिटेंस ओनली एग्जिस्ट व्हेन you apply or when we apply some voltages across this capacitor. But in this numerical, is there any voltage connected? There is no voltage connected here. It is there is no voltage connected.
दैट मीन्स ये जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस है, इस डिप्लीशन कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट ये दोनों सेमीकंडक्टर्स के कैपेसिटेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करेंगे. सो दैट्स व्हाई वी विल ओनली कंसीडर दिस ऑक्साइड कैपेसिटेंस. हम लोग सिर्फ ऑक्साइड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे. वी विल इग्नोर द डिप्लीशन कैपेसिटेंस बिकॉज there is no external voltage has been applied between the gate and substrate terminal. Now that means अभी तक क्या देखा हमने कि हम लोग सिर्फ ऑक्साइड कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फिगर 1 के अंदर मेरा जो मॉस कैपेसिटर है, इसके अंदर दो आपका इंसुलेटर लेयर है. सो दो इंसुलेटिंग लेयर बैक टू बैक है. सो नाउ यू कैन सी दैट इसके अंदर जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा उसका दो पार्ट होंगे. एक होगा ड्यू टू द एप्सिलॉन 1 मटेरियल, अनदर ड्यू टू द एप्सिलॉन 2 मटेरियल. और ये दोनों जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा दोनों लेयर के लिए, ये आपका सीरीज में आएंगे. सो दैट मीन्स वी कैन से राइट नाउ दैट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द फिगर 1 कैन बी रिटन एज C1 सीरीज कनेक्शन ऑफ C2. So C1 series connection of C2 अगर होगा, so what will be the value of C1? तो C1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये जो मेरा मॉस कैपेसिटर है इसके लिए जो C1 आएंगे ड्यू टू द एप्सिलॉन 1 लेयर, इट विल बी एप्सिलॉन 1 इंटू A डिवाइडेड बाई T1. अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या लिखा है? ऑफ यूनिट एरिया. ऑफ यूनिट एरिया. If area is unit, then A will be 1. So we can say it is epsilon 1 by T1. So similarly, we can also find C2 for the epsilon 2 layer. So it will be epsilon 2 by T2. So these are the two capacitors that has been produced due to the layer X layer and the Y layer. Now ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज होके मेरा टोटल कैपेसिटेंस देंगे. तो जैसे ही मेरा कैपेसिटेंस सीरीज होगा तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होंगे? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. अब C1 का वैल्यू मुझे मालूम है एप्सिलॉन 1 बाई T1 और C2 का वैल्यू भी मुझे मालूम है एप्सिलॉन 2 बाई C2 T2. So we will put the value of C1 and C2. So if I put the value of C1 and C2, it will be epsilon 1 by T1 into epsilon 2 by T2. यहाँ पे एप्सिलॉन 1 बाई T1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाई T2. ये हुआ इक्वेशन. अब ये तो था मेरा फिगर 1 के लिए, ये था मेरा फिगर 1 के लिए. अब फिगर 2 पे जाइए. फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही लेयर है, एक्स लेयर. एक्स लेयर के अलावा कुछ भी लेयर नहीं है. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो एक्स लेयर के लिए आएंगे, ऑक्साइड कैपेसिटेंस. सो if I consider the figure 2, then for the figure 2 what will be the total capacitance? So figure 2 के लिए जो मेरा total capacitance होंगे वो solely due to the X layer. So that means यहाँ पे आपका आएगा epsilon 1 divided by T1. अब T1 तो नहीं होगा, T equivalent होंगे क्योंकि यहाँ पे आपका thickness अलग है. So यहाँ पे आएगा आपका T इक्विवेलेंट. दैट मीन्स एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय T इक्विवेलेंट. यहाँ पे एरिया होता था और एरिया आपका यूनिट है. सो CT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय T इक्विवेलेंट. अब क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि द कैपेसिटर इन द फिगर 1 हैज ओनली वन इंसुलेटर मटेरियल X ऑफ थिकनेस T इक्विवेलेंट इफ द कैपेसिटर आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस. मतलब इसका जो कैपेसिटेंस टोटल होगा ये कैपेसिटेंस के साथ सेम होंगे, दोनों सेम कैपेसिटेंस. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से दैट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द फिगर 1 विल बी इक्वल्स टू द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ फिगर 2. ये मैं बोल सकता हूं. अब CT1 क्या है? ये वाला वैल्यू. CT2 क्या है? ये वाला वैल्यू. सो वी कैन राइट अ इक्वेशन राइट नाउ. इक्वेशन क्या होगा? एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय T इक्विवेलेंट दिस वन इज इक्वल्स टू CT1. CT1 का वैल्यू क्या है? ये वाला. सो लेट अस राइट द वैल्यू. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन 1 बाय T1 इंटू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय T2
और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई T1 और यहाँ पे एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई T2, ये वाला होगा। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट। सो T इक्विवेलेंट ढूंढने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, T1 बाई T2। अब देखो इसको मैं एलसीएम कर रहा हूं तो T1 इंटू T2 एलसीएम आएगा और एप्सिलॉन 1 इंटू T2 होंगे। सो एप्सिलॉन 1 इंटू T2, उसके साथ एप्सिलॉन 2 इंटू T1, सो एप्सिलॉन 2 इंटू T1। सो ये जो T1 T2 है ये T1 T2 कट आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो वैल्यू आएंगे दैट इज एप्सिलॉन 1 T इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू T2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू T1, ये वाला वैल्यू आया। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट? सो T इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, यू कैन सी T इक्विवेलेंट वैल्यू कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू T2 इन प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई आपका एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2। अब ये एप्सिलॉन 1 कट आउट हो जाएंगे। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन आए दैट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट राइट नाउ। सो T इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं एप्सिलॉन 1 इंटू T2, सो एप्सिलॉन 1 इंटू T2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू T1, सो एप्सिलॉन 2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2, ये वाला वैल्यू। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। अब मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज है। एप्सिलॉन 1 का वैल्यू क्या है 4, एप्सिलॉन 2 का वैल्यू 20, T1 का वैल्यू मुझे मालूम है, T2 का वैल्यू मुझे मालूम है, एप्सिलॉन 2 मुझे मालूम है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट? सो T इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई T2 मीन्स आपका 3 नैनोमीटर प्लस एप्सिलॉन 2 इज 20 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज 1 नैनोमीटर। अब एप्सिलॉन 2 का वैल्यू क्या है, फिर से 20, ये वाला वैल्यू। अब इसको मैं सॉल्यूट करूंगा। इफ को अगर सॉल्यूट करेंगे तो यहाँ पे नैनोमीटर है तो मुझे क्या लिखना होगा, T इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -9 और यहाँ पे आएगा 20। सो 10 टू द पावर -9 और 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से। So that means we can take 4 into 10 to the power -9 as common। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेंगे 3, यहाँ पे क्या रहेगा 4, अगर चले जाएंगे तो आपका आएगा 5, तो नीचे आएंगे आपका 20। सो अल्टीमेटली आपका आया यहाँ पे 4 into 10 to the power -9 इंटू यहाँ पे 5 plus 3 is 8, यहाँ पे है 20। Now we have to find the value। So that means 4 into 8 is 32 divided by 20 into 10 to the power -9। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है 10 to the power -9। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि इट विल बी 32 को अगर मैं 20 से कट आउट कर दीजिए, यहाँ पे होगा आपका 16, यहाँ पे होंगे आपका 10। So now it is 1.6 into 10 to the power -9, ये अभी आएगा मीटर पे। So मेरा जो T इक्विवेलेंट का वैल्यू निकला यहाँ पे T इक्विवेलेंट दैट इज 1.6 into 10 to the power -9 मीटर। So this is the value of the T इक्विवेलेंट जो यहाँ पे बोला गया था। अब देखो मुझे जो T इक्विवेलेंट का वैल्यू है दे हैव टोल्ड मी टू फाइंड द वैल्यू इन द नैनोमीटर, मुझे नैनोमीटर पे चाहिए। तो ये जो है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर जो -9 है उसको नैनोमीटर लिख सकता हूं। सो ये वाला वैल्यू आएंगे। सो अल्टीमेटली आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 1.6 नैनोमीटर। So you can see how we have calculated the value of the T equivalent from this example.
So if you want this type of examples or numericals on the MOS capacitor, just subscribe the channel and like the videos. Hopefully you have enjoyed the videos, and thank you for watching the videos.